हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतीक्षा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीश शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of individual, dignity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये एक प्लेज है, ये हम प्लेज लेना है। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा प्रदान करना। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। देश के समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों
के प्रति दया भाव रखना, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षक के अवसर प्रदान करना। अब इसी को अंग्रेजी में It will be the duty of every citizen to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture, to protect and improve the national environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, and to provide opportunities for education to all his child or ward between the age of 6 and 14 years. So thank you very much और आप सबको बहुत बहुत मुबारक। क्या है उसके बाद हम बताइए सर। I request all to go on to mygov.gov.in, mygovernment.gov.in and register yourself for the pledge and enter your name along with the organizational name so that you can get the certificate and we can also be reflected on the national portal. माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय कुलसचिव महोदय जी, आदरणीय अध्यक्ष शैक्षिक कार्य विभाग तथा उपस्थित सह अध्यक्षगण, अध्यापकगण, अधिकारीगण एवं अन्य कर्मचारी और प्रिय शिक्षकों, आज हम सब इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर एक उपस्थित हुए हैं और मेरा तहे दिल से आप सबको मेरी तरफ से स्वागत अतः अभिनंदन। माननीय कुलपति महोदय जी, मैं आपसे अनुमति चाहूँगा कि मैं आज के कार्यक्रम के विषय में आपसे कुछ और इन सब से कुछ मुख्तसर रूप में एक रूपरेखा रखना चाहूँगा। बताइए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान के
प्रारूप को मंजूरी दी गई थी तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। प्रारंभ में संविधान की कोई भी मुद्रित प्रति उपलब्ध नहीं थी, परंतु दिल्ली के प्रेम बिहारी नारायण जी ने अंग्रेजी में और बसंत बैस जी ने हिंदी में इसे संकलन करने की जिम्मेवारी स्वीकार की थी। प्रेम बिहारी रायजादा जी ने संविधान के 22 भागों को 395 लेखों को और संविधान के 8 परिशिष्टों को बहुत ही सुंदर रूप में लिखा था। पहले पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक लिखावट बहुत ही अद्भुत थी और इसमें 254 बोतल स्याही और 303 निब वाले कलम इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा प्रत्येक पृष्ठ पर महान चित्रकार नंदलाल जी ने के नेतृत्व में शांति निकेतन के कलाकारों ने फ्रेम को उभारा था। मूल पांडुलिपि के प्रत्येक भाग की शुरुआत में महान चित्रकार नंदलाल बोस जी ने भारतीय संस्कृति और इतिहास के कुल 22 दृश्यों को सींचा है। नंदलाल बोस जी के चित्रों में मोहनजोदाड़ो, सिंधु संस्कृति के वृषभ, वैदिक काल में के गुरुकुल प्रणाली इत्यादि शामिल हैं। मराठा काल में छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा चोल परंपरा में नटराज की मूर्तियां, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी की दांडी मार्च, सुभाष चंद्र बोस, नालंदा विश्वविद्यालय आदि सभी शामिल किए गए थे। मैं लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के सर्वसमेशी संविधान दिवस के आज के उपलक्ष्य में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम संविधान निर्मित सभा के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञ जाहिर करते हुए हम सभी संविधान के पालन हेतु प्रतिबद्ध हो और